اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 148 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ واو اور لی کے لیے، کلن ہر ایک، والی کلن اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا اسی کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیراتی نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یاتی وہ لے آئے گا، بیکم تمہیں، اللہ جمیعاً اکٹھا، جمع کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک، اللہ علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، مولیہا اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی راہ میں سبقت کرو۔ سبقت کا معنی آگے بڑھ جانا، تم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم اسی آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے شروع میں جو لفظ آیا ہے وَلِكُلٍّ، آیت مبارکہ کے شروع میں جو لفظ آیا ہے وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہوئیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہوئے، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مشرکین ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، قرآن پاک کے نزول تک جتنی بھی قومیں ہوئیں، ہر قوم کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے، وہ اسی کی طرف رخ پھیرنے والا ہے، ہر قوم اسی کی طرف رخ پھیرنے والی ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر عبادت ہوتی ہے، دنیا کے ہر مذہب کے اندر عبادت کا تصور موجود ہے۔ جب عبادت کا تصور ہے تو قبلے کا تصور بھی ہے، ہر قوم کے اندر قبلے کا تصور موجود ہے۔ جب بھی وہ عبادت کریں گے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی تو سمت مقرر کریں گے۔ تو یہ تو ایک بہت پرانا ایک قانون چلا آ رہا ہے، ایک دستور چلا آ رہا ہے، ایک رول چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مانتی ہے۔ تو جب ہر ایک قوم کے لیے قبلہ موجود ہے تو یہود و نصارہ کو اس پر اب کیا اعتراض کرنے کی سوجی ہے کہ وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں مانتے ہیں۔ یہ بالکل ایک بے تکا اعتراض ہے، غیر معقول اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ بھئی جب ہر قوم کا ایک قبلہ ہے تو مسلمان قوم کا بھی ایک قبلہ ہے۔ جب ہر قوم اپنے لیے کسی نہ کسی قبلے کو مقرر کر دیتی ہے، کسی نہ کسی جہت کو، سمت کو مقرر کر دیتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک قبلے کو، ایک سمت کو متعین کر دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین یہ ایک قانون بیان فرما کر آگے بیان فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی اس بحث میں الجھنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی کہ مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں مانتے ہیں۔
इस बहस में मत पड़ो, अपना वक्त ज़ाया मत करो। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आयद कर दी गई हैं। किसी भी कौम के लिए जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो मकसद का तयन होता है, वो मंजिल का तयन होता है। तुम्हारे लिए मकसद मुतय्यन कर दिया गया, मंजिल तय कर दी गई, तुम्हारे लिए किबला तय कर दिया गया। अब तुम्हें अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने खुद भी नेक कामों में आगे बढ़ना है, दूसरों को भी नेक बनाना है, खुद भी बुराइयों से बचना है, दूसरों को भी बुराइयों से बचाना है, भलाइयों को आम करना है, नेकियों को आम करना है। तो तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है। ये जो अहले किताब हैं, यहूद हैं या नसारा हैं, ये चाहते हैं कि तुम इन्हीं बहसों में पड़े रहो, इन्हीं बहसों में उलझे रहो और अपने असल मकसद से हट जाओ, अपनी असल मंजिल से तुम दूर चले जाओ। तो ये तुम्हें दूर हटाने के लिए, तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए, तुम्हें खामखा परेशान करने के लिए तुम्हें इन बहसों के अंदर उलझाए रखेंगे। आज भी फी ज़माना अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ, हमारे गिरदो पेश में जो लोग हमें राह रास्त से हटाना चाहते हैं वो इसी तरह की बहसों में उलझा देते हैं। अगर आप देख लें इस वक्त जितने नाम नहाद किस्म के दानश्वर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो यही काम करते हैं कि फजूल किस्म की बहसों के अंदर उलझा दिया जाए। ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल है या हराम है, अल्लाह ने इसका हुक्म क्यों दिया है। तो खामखा में फजूल किस्म की बहसों में उलझा कर अहले इस्लाम को राह रास्त से हटाने की कोशिश की जाती है। तो आज ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए किबले का तयन कर दिया गया है। अब तुम्हारा काम जो है वो ये है कि तुम नेकियों के मामले में आगे बढ़ो। एक जुमला है जो बड़ा ही काबिल गौर, काबिल तवज्जो है, फस्तबिकुल खैरात। इसे आज भी पल्ले बांधने की ज़रूरत है कि अपने असल टारगेट को अचीव करो, अपना कोई ज़िंदगी का नस्बुल ऐन तय करो, मकसद तय करो और उस मकसद को पाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहो। उससे एक लम्हा भी अपने मकसूद से हटने के लिए तैयार ना हो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, जलील और रुसवा हो जाओगे। ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हें ले आएगा, अल्लाह तुम्हें जमा कर लेगा, अल्लाह तुम्हें ले आएगा जमा करके, वो तुम सबको जमा कर देगा, तुम जहां कहीं भी हो। अब इस आयत के इस टुकड़े के अंदर एक बड़े ही अहम एतराज को दूर किया जा रहा है कि जब तुम खाना काबा से दूर होगे, तुम जहां कहीं भी हो, तुम किसी और शहर में हो, तुम किसी और मुल्क में हो, तुम दुनिया के किसी और खित्ते में हो, किसी और कंट्री में हो, तो इससे खाना काबा कहीं से मशरिक की तरफ आएगा, कहीं से मगरिब की तरफ आएगा, कहीं से शुमाल की तरफ आएगा, कहीं से जुनूब की तरफ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम जहां कहीं भी हो तुम इसी की तरफ रुख करना, तुम इसी को अपना मरकज तस्लीम करना। तुम्हारे लिए मरकज तय कर दिया गया, किबला तय कर दिया गया, डायरेक्शन तय कर दी गई। जैसे यहूदो नसारा मशरिक और मगरिब के अंदर उलझ जाते हैं, नसारा जो हैं वो मशरिक की सिमत को अपना किबला मानते हैं, मशरिक की सिमत को, और यहूदी जो हैं वो मगरिब की सिमत को अपना किबला मानते हैं। तो तुम अपने लिए किसी सिमत को किबला ना मानना, बल्कि तुम अपने लिए खाना काबा को, मस्जिद हराम को किबला मानना। तो जब तुम किसी भी जगह पर होगे तो इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाना या इस ख्याल के अंदर मुब्तला ना हो जाना कि पता नहीं हमारे सजदे कबूल होंगे या नहीं होंगे, या हम किसी और जगह पर होंगे तो हम किसी और तरफ रुख करेंगे। नहीं, फरमाया तुम जहां कहीं भी हो तुम्हारा रुख खाना काबा की तरफ हो, तुम्हारा किबला मस्जिद हराम हो। अल्लाह तुम सबको जमा कर देगा। इस जमा करने से मुराद यह है कि वो तुम्हारी नेकियों को जमा कर देगा। इस जमा करने से मुराद यह है कि जब कल महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान, तो महशर के मैदान में अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर देगा और वहाँ ये फैसला अल्लाह ताला खुद कर देगा कि तुम में से हक पर कौन था। आज इस बहस में तुम मत पड़ो, इन बहसों के फैसले अब हशर के मैदान में हो जाएंगे। आयत के आखिर में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत बयान फरमा दी कि तुम जहाँ कहीं से भी खाना काबा की तरफ रुख करके सजदा करोगे तो अल्लाह ताला
जानता है कि मेरे बंदे ने कहाँ कहाँ से सजदा किया है। बस तुम्हारा रुख खाना काबा की तरफ होना चाहिए। तुम्हारी हर नेकी कबूल हो जाएगी, तुम्हारी हर इबादत कबूल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम सबको एक ही जगह पर जमा करने की भी कुदरत रखता है। वो तुम सबको जमा कर देगा, वो तुम सबको इकट्ठा कर देगा, वो तुम सबको मुत्तहिद कर देगा। अल्लाह ताला बड़ी कुदरतों का मालिक है। वो तुम सबको एक नुक्ते पर जमा कर देगा, तुम्हें यकजान कर देगा, यक कालिब कर देगा। तुम इस किबले से ना फिरना। अब ये तय हो गया है कि तुम्हारा किबला खानाए काबा है, मस्जिद हराम है। इससे अब तवज्जो किसी और तरफ मबजूल न करना। अब कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के किसी और मुल्क के लोग वो किसी और को किबला मान लें। नहीं, इससे तुम्हारा इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। इसमें तुम आपस में कट जाओगे, एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो जाओगे। तो एक किबले पर सब मुत्तफिक रहना, जमा रहना, यकजा रहना, अल्लाह भी तुम सबको जमा कर देगा। तुम्हारे दिलों के अंदर वो इत्तेहाद की दौलत पैदा कर देगा। तुम एक ही किबले को अपनी तवज्जुहात का मरकज बनाए रखना।